गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू लिटिल एंजल्स एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस. So now we are going to start our online classes of class 8th subject science and chapter 11 force and pressure. So in first day and the first video we are going to start this chapter which relates to the physics portion of the science NCERT book of class 8th. So all you have the questions that sir, why you have started this topic like chapter number 11, why didn't you start chapter number first? So firstly I am going to tell you that all those chapters like chapter 1, 2, 3 relates with agriculture and furthermore processes that you can read separately and understand easily. Those are the easy chapters comparative to all these chapters, because these chapters relates with the physics and the physics portion always confuse the students at home. So we are starting our 11th chapter, the force and the pressure. Firstly we discuss about what is force and pressure. So force क्या है और pressure क्या है. When you push or pull any object according to your NCERT book, when you push or pull any object, that is called force. It means that if I have any box or any vehicle, अगर इसके अनुसार मेरे पास कोई बक्सा या फिर कोई ऑब्जेक्ट है जिसको मैं पुश कर रहा हूँ या फिर मैं उसको पुल कर रहा हूँ, अगर उसके शेप में और उसके पोजीशन में चेंजेस आ जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, फोर्स होता है. लाइक दिस इज़ ए बॉक्स. व्हाट इज दिस इज़ ए बॉक्स. When you push it from here with the force F, what is the force? Magnitude of the force is F. प्यारे बच्चों, you all know about magnitude. What is magnitude? This is परिमाण. This is परिमाण which give us the value of the force, etc. So when we push this box by the force F, then this object or box will move in this direction. So this is called the force. And what is pressure? When you push the box, like this is a box and you push it from here, so you apply the force at this point. Where you apply the force? At this point. So for this unit area, the force for unit area, I'm not describing the formula because there is no need in the introduction for the formula. Force and unit area, when you apply the force on per unit area, that is called pressure. जब भी तुम इस एरिया पे अपना फोर्स अप्लाई करोगे, किसी एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया पे अपना फोर्स अप्लाई करोगे, तो वहाँ पे उसे हम प्रेशर कहेंगे. सो व्हाट इज फोर्स? To move or change the object, this is called force. So now we discuss about the chapter. Firstly we discuss previous studies. In the last session of 2020-21 you have studied in your 7th class that a car is moving, that like 3 cars moving in particular direction. This is
car A, this is B and this is C. In the second image you see that the car C is here, car C is here and A car is here and B car is here. So you have studied this situation in your speed chapter. So what the distance in per unit time describes? So first question in your chapter is कि जो डिस्टेंस है वो पर यूनिट टाइम में किस चीज़ को दर्शा रहा था? वो दर्शा रहा था स्पीड को, और वो स्पीड उसको किसकी वजह से मिली? उसकी उस पर जो फोर्स लग रहा था इंजन की वजह से, उस वजह से। ठीक है बच्चों, तो ये सब आपको याद आ रहा हो, 7th क्लास में हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। ये हो गया तुम्हारे प्रीवियस स्टडीज़ के बारे में। अब कुछ देखते हैं हम डेली एग्जांपल्स। तो डेली एग्जांपल्स बच्चों क्या है, जैसे कि कोई गेंद है जो एक प्लेन पे रोल हो रही है, एक प्लेन पे क्या हो रही है? रोल हो रही है। तो उसको अगर रोल हम होने देते हैं पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में, तो कुछ टाइम बाद अगर ढलान कुछ ऐसी है नीचे की तरफ यहाँ से, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। सीधी है तो कुछ टाइम बाद वो रुक जाती है। अगर उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वो तब भी रुक जाती है या फिर अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। तो ये सब कंडीशंस उसके साथ में कुछ ऐसी होती है। तो ऐसा क्यों होता है? और कुछ ऐसे एग्जांपल्स और भी हैं, जैसे एक फुटबॉल है, उसमें ऐसा हम क्या करें कि वो मूव करने लग जाए, वो एक जगह पे जहाँ पे रुकी हुई है वहाँ से आगे बढ़ने लग जाए। हम उसमें किक मारते हैं तब क्या करती है वो बॉल, फुटबॉल जो है मूव करती है। एंड द सेकंड एग्जांपल, जब कोई बॉल गोलकीपर उस फुटबॉल को रोकने की कोशिश करता है तो अपने हैंड्स को आगे लेके आता है। जैसे ही बॉल उसके हैंड से टकराती है, व्हेन द बॉल हिट्स हिज हैंड्स द बॉल स्टॉप मूविंग, तो बॉल जो है वो मूव करना स्टॉप कर देती है। उसी के बाद हम थोड़ा एग्जांपल्स को देखते हैं हमारे बुक्स में। तो वहाँ एक हॉकी वाला एग्जांपल, जहाँ पे एक प्लेयर हॉकी स्टिक से हॉकी बॉल को रोकने की कोशिश करता है और वो रोक भी लेता है या उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। जैसा कि आप जानते हो, आपने हॉकी को कभी टीवी में देखा होगा, तो काफ़ी सारे हॉकी प्लेयर्स होते हैं जो एक बॉल को अपनी स्टिक से पुल करते हैं या फिर उसको रोकने की कोशिश करते हैं या फिर उसकी डायरेक्शन को चेंज करके अपने दूसरे प्लेयर की तरफ उसको पहुंचा देते हैं। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स थे जहां पे हमको पता लग रहा था कि फोर्स लगाने से या तो ऑब्जेक्ट अगर मूविंग पोजीशन में है तो रुक जाता है, या फिर अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, या फिर स्टॉप पोजीशन में है तो अपने मूविंग पोजीशन में, मूविंग कंडीशन में आ जाता है, मूविंग स्टेट में आ जाता है। तो ये हो गए कुछ डेली एग्जांपल्स जिससे हमको फोर्स के बारे में पता लगता है। Then the third topic in this chapter, that force, pull or push. So after studying all three examples like hockey player, football player and the ball, hockey, football and the ball which was rolling on the surface. After studying these three examples, we can say that the push or pull of any object, the phenomena. So I am writing down the force definition. Push or pull on any object which change object state is called the force. This is general force. This is the general definition of force. I am not saying that this is the accurate, but according to your level and qualifications,
This is the general definition which have NCERT provide you. Furthermore, I want to tell you that if you pull a heavy weight like 100 kg of stone, then you can't, I know that you don't have a capability to pull it or push it. So there is a condition when you apply the force but you can't made it change in the position. तो अगर यदि आप 100 किलोग्राम के पत्थर को धक्का देने की कोशिश कर रहे हो, उसकी इस कंडीशन में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो, उसको पुल कर रहे हो, फिर पुश कर रहे हो, उसको धक्का दे रहे हो या फिर खींच रहे हो, तो वहाँ पे आप उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं ला पाते हो, तो क्या वहाँ पे फोर्स नहीं लगता? ऑफ कोर्स वहाँ फोर्स लगता है। तो सर फोर्स की डेफिनेशन पुल और पुश से ही क्यों दिखाई जा रही है? ये सभी कंडीशंस मैंने आपको बता दी है कि आपके एनसीईआरटी बुक में सिर्फ इतना ही बताया गया है। तो आपको ये जनरल डेफिनेशन याद रखनी है और यही डेफिनेशन आपको अपने बोर्ड्स में लिख के आनी है, जो आपको अच्छे मार्क्स भी प्रोवाइड करवा देगी, प्रोवाइड बेटर मार्क्स। So let's discuss about something else. So write down this definition in your notebook and study this. Be advanced, because these all informations are providing to you for your future, and in the future you don't have any hesitation to learn this definitions etc, chapter etc, because these chapters I am going to describe you, that I am explaining you, is based on my platform. This is the best platform for study, which is given by Little Angels Academy. So please write down this by the pausing the video. You can pause down your video, you can pause your video and note it down. I am roughing it. So the next one is definition of force, which I have already shows you that push or pull is called force. So these two headings have covered in single heading. So what is the force, push or pull of any object which change the state of the object is called force. And the next heading is interaction result. What is interaction? When you touch any object to change its state, like it is moving, to stop it, and it is in a stop condition, to move it. So you have to interact with this, like if I have this box, and this is the surface, this is not my hand, like think about it, this is not my hand, this is a surface. If I am to pull this box, so I have to interact with this box. अगर मुझे इस बॉक्स को पुश करना है, फिर पुल करना है, तो उसके लिए मुझे इससे इंटरेक्ट करना पड़ेगा, इसको टच करना पड़ेगा, उसके बाद में इस पर मैं फोर्स लगा सकता हूँ, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेशर डाल सकता हूँ, जिससे क्या करने लगे, इसको फोर्स मिले और ये मूव करने लग जाए. सो all objects move in any particular direction after interaction with this. So you can take examples like a moving then like push a car, the car starts to moving, and a farmer or a shepherd hatching its cow or cattle on the road and pushing a round tire in particular direction by the hitting of stick. And another examples are there, or there are more examples in your notebook, so you can read that from there. So at last what I want to say that last में ये बुक्स आपसे कहना क्या चाहती है, आपसे ये बुक्स कहना चाहती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर स्टेट में, मोशन में चेंज करने हैं,
तो वहाँ पे आपको उसके साथ एक बार इंटरेक्ट करना पड़ेगा, उस चीज़ को टच करना पड़ेगा। वी आर नॉट द मैजिशियन, हम कोई मैजिशियन जादूगर नहीं है जो बिना छुए उस ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंजेस ला देंगे। अब मुझे तो ये भी नहीं पता कि जो जादूगर है वो कैसे काम करते हैं, क्योंकि मैंने तो कभी जादू किया नहीं है। आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग मैजिक, so I can say that only we are not the magician, so we have to interact with that object to change that position। अगर हमको उस ऑब्जेक्ट की स्टेट में कोई चेंजेस लाने हैं तो हमको उससे इंटरेक्ट करना पड़ेगा। so I have explained this heading, and the next heading is magnitude of forces, and the most important heading this is, and this one also, so you have to be careful from reading these two headings। so let's start this। आपको इन दो हेडिंग्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये कुछ इम्पोर्टेंट भी हो जाती है इस चैप्टर के हिसाब से। अब आपसे मैं कुछ कंडीशंस की बात करने वाला हूँ, वो 3 कंडीशंस मैं आपके सामने बना देता हूँ। लाइक दिस इज़ वन बॉक्स, फोर्स और यहाँ भी एक फोर्स है, तो 2 फोर्सेस है। फोर्स को मेज़र करते हैं न्यूटन में, तो ये 5 न्यूटन का फोर्स है और ये भी 5 न्यूटन का फोर्स है। चलो इसे 15 न्यूटन का मान लेते हैं। एंड द सेकेंड, ये 5 न्यूटन का यहाँ पे और 15 न्यूटन का यहाँ से, दोनों फोर्स लग रहे हैं सेम डायरेक्शन में। एंड द थर्ड कंडीशन इज, एक फोर्स यहाँ से लग रहा है 5 न्यूटन का, फोर्स F1, F2 बोल दिया इसको F1, इसको F2 बोल दिया। यहाँ से भी 5 न्यूटन का, यहाँ क्या है F, यहाँ भी क्या है F, क्योंकि दोनों, चलो F1 F2 लिख देते हैं इनको भी। सो इन द फर्स्ट कंडीशन आपको देखना होगा कि यहाँ पे जो F1 की वैल्यू है, फोर्स 1 है, वो 15 न्यूटन का है, जो बॉक्स के इस डायरेक्शन में लग रहा है। इस डायरेक्शन की तरफ 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है उधर से इधर की तरफ धक्का देने के लिए। तो जब हम इन दोनों फोर्सेस को क्या मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड निकालने के बाद में F1 माइनस F2 इज इक्वल्स टू 15 माइनस 5, तो वैल्यू आती है 10 न्यूटन। तो ये 10 न्यूटन आप बता सकते हो किस डायरेक्शन में लगेगा, जो फोर्स लगेगा 10 न्यूटन लगेगा, और किस डायरेक्शन में लगेगा, उस तरफ, क्योंकि फोर्स यहाँ से ज़्यादा लग रहा है तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा इस तरफ। तो मैग्नीट्यूड किस तरफ जाएगा, जिस तरफ ऑब्जेक्ट क्या करेगी, मूव करेगी। डायरेक्शन कौन सा होगा इसका, ये वाला। तो ये मैग्नीट्यूड हमने निकाला कैसे, दोनों फोर्सेस का हमने क्या निकाला, डिफरेंस निकाला। इससे हमको क्या पता लगता है कि फर्स्ट कंडीशन ये हमको प्रोवाइड होती है कि मैग्नीट्यूड, फर्स्ट कंडीशन में हम मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं कि अगर फोर्सेस 2 अलग अलग डायरेक्शन से लग रहे हैं तो उनका डिफरेंस निकाल के जो वैल्यू आती है, जो मैग्नीट्यूड आता है, वो उतने न्यूटन का फोर्स, उस वैल्यू के न्यूटन का फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। एंड द सेकेंड कंडीशन इज व्हेन 2 फोर्सेस आर अप्लाइंग फ्रॉम सिंगल साइड्स टू द ऑब्जेक्ट, जब 2 अलग अलग फोर्सेस या फिर सेम फोर्सेस एक ही डायरेक्शन से कहाँ लग रहे हो, किसी भी ऑब्जेक्ट के एक तरफ से लग रहे हो। जैसे मैं यहाँ से लगा रहा हूँ, कोई एक दूसरा बंदा भी है जो वो यहीं से फोर्स लगा रहा है, द अनदर गाय इज अप्लाइंग द फोर्स फ्रॉम दिस साइड। सो यहाँ पे अगर हम फोर्स निकालेंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो वो निकल के आएगा F1 प्लस F2 से। तो सेकेंड कंडीशन क्या निकल के आई, जब फोर्स किसी एक ही डायरेक्शन से अप्लाई हो रहा हो तो वहाँ पे मैग्नीट्यूड उन फोर्सेस के ऐड से सम से निकल के आता है, सम के इक्वल होता है। और एक और थर्ड कंडीशन क्या निकल के आती है, जब फोर्स क्या हो, दोनों कंडीशंस में अपोजिट डायरेक्शन में हो और प्लस में क्या हो, 5 इक्वल न्यूटन का हो, इक्वल वैल्यू, इक्वल मैग्नीट्यूड का हो। तो यहाँ से हमको पता है कि अपोजिट डायरेक्शन में जब भी फोर्सेस लगते हैं तो हम डिफरेंस निकालते हैं। तो F1 माइनस F2, यहाँ मैं कंडीशन करता हूँ तो 5
-5 आ जाता है और 0। तो जब भी सेम इक्वल फोर्स दोनों साइड से किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होंगे तो वहाँ पे उनका मैग्नीट्यूड हमेशा हमको क्या, उनका रिजल्टेंट हमको क्या मिलेगा, हमेशा 0। तो 3 कंडीशंस निकल के आती है। थ्री कंडीशंस यहाँ पे निकल के आती हैं। वो तीनों कंडीशंस क्या निकल के आती हैं कि जब भी डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई किए जाएंगे और जो डिफरेंट डायरेक्शन से अप्लाई होंगे तो उनका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लेते हैं हम, उनका डिफरेंस निकाल गए। और जब सेम और डिफरेंट फोर्सेस हो और पर सेम हो या डिफरेंट फोर्सेस और वो किसी एक ही डायरेक्शन से फोर्सेस, किसी एक ही डायरेक्शन फ्रॉम सिंगल डायरेक्शन किसी एक डायरेक्शन से अप्लाई हो तो वहाँ पे मैग्नीट्यूड कैसे निकल के आ रहा था, सम ऑफ द फोर्सेस, दोनों फोर्सेस का, दोनों तीनों जितने फोर्सेस लग रही है उनका सम करके। डिफरेंट डायरेक्शन फोर्सेस विद इक्वल वैल्यू, जब इक्वल वैल्यू वाले फोर्सेस हो पर फोर्सेस के डायरेक्शंस हो अलग अलग, एक उस तरफ से एक इस तरफ से, तो वहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या निकल के आ रहा था, 0। सो गाइज वी हैव डिस्कस्ड द पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस क्लास। You have to carefully study about this chapter. This is most interesting chapter in your notebook, in your NCERT book, sorry. So this is the physics portion. Carefully read this chapter and all the notes will be providing would be provided you to would be provided on your app. So be careful.